Hello kids, again welcome you to the Academic Heights Public School. We are on chapter number 2 and our last but not the least topic is word problem of multiplication and division. You remember we had done word problem of addition and subtraction, है ना? चलिए let's revise all. There are four basic operations. कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना? चलिए मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे वर्ड प्रॉब्लम के लिए. हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एडिशन के लिए ऐड, प्लस, मोर, एंड, टोटल, इंक्रीज, सम, टुगेदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Subtraction, subtract, minus, take away, decrease, take from, reduce, fewer, left, etc., etc., etc. Multiplication, product, times, lots of, multiplied by, times table, group of, etc., etc., etc. Division के लिए share, group, divide, divide into, divide by, divisible by, share equally, etc., etc., etc. ये कीवर्ड्स हमें अपने माइंड में रखने हैं. Why? Because these keywords would probably helps us to find whether the word problem is of addition, subtraction, multiplication or division. Understood? Let's start with today's topic, that is word problem. Abhi I'll make you remind once again, है ना? Statement should be concised. Use abbreviation, and last but not the least, try to write conclusive statement at the end. हमेशा मुझे लास्ट में एक स्टेटमेंट मिलेगी जिसमें मुझे पता लगेगा कि मुझे निकालना क्या है. Remember? चलिए let's start with examples. My first example is a set of books cost rupees 1459. A school ordered how many sets? 375 such sets. How much did the school pay? अब मुझे बताइए स्कूल कितना पे करेगा. Now here cost of one book set is given and I need to find the cost of 375 book sets. So here I'll do cost of a book set is rupees 1459. Cost of 375 book sets are 1459 multiplied by 375. So the cost of 375 book set, that is total cost is rupees 5,47,125, and I had done the multiplication on the very right side of the notebook, and at the last I'll write the concise statement. So the school pays rupees 5,47,125. Now ये क्वेश्चन करते हुए मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट थिंग इज आई आइडेंटिफाई वेदर इट इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन. एंड नेक्स्ट थिंग इज मुझे मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए. रिमेंबर टू थिंग्स. अब मुझे इन दोनों पे फोकस करना है. गॉट दिस थिंग क्लियर? सो प्लीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे एग्जाम्पल, सो दैट यू विल डू वर्ड प्रॉब्लम वेरी इजीली. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग I'll do? I'll give you more examples. Now my next example is find the product. So multiply of 5,24,731 and 1,394 by rounding off. Estimation आ गया to nearest thousand. So my one number is
5,24,731। अब उसे मुझे राउंड ऑफ करना है। एस्टिमेशन, सो थाउजेंड्स के लिए चेक हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस पे इज 7, तो मेरा 1000 प्लेस क्या हो जाएगी +1, so it's 5,25,000. Another number is 1,394. Again check 100. So my answer rounding off is 1,000. Product is, it is very easy to calculate. So multiply 5,25,000 by 1,000, that is 52 crore 50 lakh. So the product is 52 crore 50 lakh is my concise statement. So इस क्वेश्चन में हमने पहले तो कीवर्ड से आइडेंटिफाई किया, फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, एंड थर्ड थिंग इसमें क्या थी, राउंडिंग ऑफ. सो मेरा राउंडिंग ऑफ कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. One more example. 4,912 screws can be packed in one carton. How many screws can be packed in 1,475 such cartons? अभी मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करा और ये समझ में आया कि 1 कार्टन की वैल्यू गिवन है और मुझे 1,475 कार्टन्स की वैल्यू निकालनी है. तो अगर 1 की गिवन हो, ज़्यादा की वैल्यू निकालनी हो तो मल्टीप्लाई. चलिए, दिस आई केम टू नो, मुझे मल्टीप्लाई करना है स्टेटमेंट्स. मेक इट कंसाइज. नंबर ऑफ स्क्रूज इन अ कार्टन इज, नंबर ऑफ कार्टन्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज कितने हैं 4,912 इंटू 1,475. मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आएगा 72,45,200. सो 72,45,200 screws can be packed in 1,475 such cartons. Next example. A packet can hold 144 pens. एक पैकेट इतने होल्ड कर सकता है, तो 38,45,952 पेन्स कितने पैकेट में आएंगे. ठीक है, अभी मुझे यहाँ नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. सो टोटल पेन्स इज 38,45,952. नंबर ऑफ पेन्स इन अ पैकेट, एक पैकेट में. टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होंगे, डिवाइड. डिवाइड करने पर मेरे पास क्वाड्रेंट क्या आया, 26,708. सो देयर आर 26,708 पैकेट्स रिक्वायर्ड. One more example. The cost of 125 refrigerators is rupees 67,10,625. What is the cost of one refrigerator? ज़्यादा की वैल्यू गिवन है, 1 की निकालनी है, डिवाइड. कॉस्ट ऑफ 125 रेफ्रिजरेटर्स, कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज, डिवाइड करिए. क्वाड्रेंट मेरे पास क्या आया है, 53,685. So the cost of one refrigerator is rupees 53,685. My last topic left was estimation. अभी मैंने डिवीजन सम का एस्टिमेशन नहीं सिखाया ना आपको, so we'll do it first. अभी my example is estimate the quotient by rounding off to the nearest 1,000. चलिए डिजिट्स देख लेते हैं. 75,68,825. पहले तो मुझे एस्टिमेट करना आना चाहिए इसे थाउजेंड्स प्लेस तक. चेक हंड्रेड्स प्लेस, दैट इज 8. सो माय नंबर इज 75,69,000. सिंपली डिवाइड किससे करना है मुझे, 1,425. यहाँ मेरा एस्टिमेशन क्या होगा, 1,000. अभी मैंने आपको 100,000 10 अगर आपका डिवाइजर हो तो डिवाइड करना सिखा ही रखा है. सिंपली राइट क्वोटिएंट एज 7569 और रिमाइंडर बचा 0. सो माय क्वोटिएंट इज 7,569. वन मोर एग्जाम्पल. एस्टिमेट द क्वोटिएंट बाय राउंडिंग ऑफ. अब यहाँ मैंने आपको प्लेस नहीं बताया, सो हाउ विल वी डू. 8,95,904 को डिवाइड करना है, राउंड ऑफ करिए. सिंपली लाख तक क्या हो जाएगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 9
142। सो यहाँ मैं कहाँ करूँगी, लास्ट की 2 डिजिट 0, तो क्या हो जाएगा 900। सो हेयर माय आंसर इज 1000 सिंपली, बिकॉज आपका 9 ones are 9 और 2 0 से 2 0 कैंसिल, सो 3 zeros are left, so my answer is 1000. One more example. Estimate the quotient by rounding off to nearest 1000. अब यहाँ मैंने फिर से 1000 प्लेस वैल्यू बता दिया, सो यहाँ मैं पहले इसको राउंड ऑफ करूँगी थाउजेंड्स तक। सो माय फर्स्ट नंबर इज 9,96,904 को राउंड ऑफ किया 9,96,000 डिवाइडेड बाय 2,706 राउंडेड ऑफ टू 3000, सो डिवाइड करो, 30 से 30 कैंसिल, बचा मेरे पास 996 को डिवाइड किया 3 से, सो माय आंसर इज 332। इस तरह हम करेंगे एस्टिमेशन। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असाइनमेंट वर्क, you have to practice 2.10 and 2.13 सारी वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे and submit me before 8th of May. Thank you.